I hope all of you revised the concept of sphere. And yes, so this is lecture number 2 of chapter number 8, 12th standard electrostatics. And we had done for sphere, and today we are going to apply for a cylinder. So we are still doing the application of Gauss's law. And in the application of Gauss's law, we have to study the electric field for infinitely long cylinder. Infinitely long cylinder could be like a wire also, like a very thin wire also. So let's see how we are going to go about that derivation. And then we have thin infinite plane sheet. Okay, so let's start with thin, this. Okay, so we are going to start with the thin infinite plane, the long cylinder. So I want all of you to write it down, like if you have. This is electric field intensity. This is the electric field intensity for electric field intensity for, you can take the heading from here, for infinitely long cylinder or thin wire. So this derivation is for the electric field for infinitely long cylinder or thin wire. Infinitely long cylinder or thin wire. Can we start? Okay, so we are looking into a very infinitely long, straight, charged wire, or we can say a cylinder. So how does it look like? So this is our cylinder. You can see the cylinder is the one in red. So this is the cylinder. So this is like our A and this is like our B. You remember A and B in sphere also, right? So exactly like that, your infinitely long, straight, charged wire. So I'm going to draw it separately so you can draw it with me also. I'm going to draw it according to the textbook. So they have drawn this infinitely long cylinder like this. And this is the axis. And this is the axis, and this is positively charged. This is positively charged. Now we are taking a point P. So we are taking a point P, which is at a distance of R. Yeah, because it could be any length. That is the meaning, Rasika. Infinitely means any length. फर्क नहीं पड़ता कि छोटा सिलेंडर है, बड़ा है, पतला है. So when we say infinite, we are talking about a long straight charged wire. So we are taking this distance R, just like we took last time. And इसका जो cylinder का जो radius रहेगा वो capital R रहेगा. If you remember, I had already taught you that a cylinder has two parts. One is called as the plane surface. So this is nothing but the plane surface. And this is nothing but the curved surface.
So that is the plane surface and this is the curved surface. So charge distribution जो है हमने कहाँ रखा है, it is along the curved surface. मतलब it is along the length of the cylinder. It is along the length of the cylinder. So could you tell me, are we talking about sigma here? Are we talking about lambda here? Or are we talking about rho here? Anybody? Are we talking about lambda? Yes, we are talking about lambda here. Because the charge is distributed along the length. ये जो सिलेंडर है उसके along the length हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है. यानी कि ये जो चार्ज है, let's say this is Q, then we can say that this is distributed along the length. But now the length is infinite because we have taken infinite length. So what we do is, suppose I want to find at this point P, what is the electric field? I check the distance from the axis. From the axis to this point, I will check it as small r. And from here, I'm going to draw a cylinder shape. You know what this is? Anybody? What is this? This is the Gaussian surface. This surface that I have drawn here is nothing but the Gaussian surface. Just like last time, मैंने sphere के around एक sphere draw किया था, वैसे ये मेरा Gaussian cylinder है या ये मेरा Gaussian surface है. मतलब वो actual में नहीं है, वो imaginary है. तो जो actual cylinder है वो A है और जो Gaussian वाला है वो B है. मतलब वो imaginary वाला है. Right? So I want to find out what is the electric field at point P, which is at a distance of small r from this charged cylinder. And you have to imagine a Gaussian surface around this charged cylinder, that is A. Now, what do we have to do? We have to consider an area. You remember last time we had considered an area around this point P. So steps वही रहता है, सिर्फ shape change हुआ है. We have to consider two things here. Do you remember what are the two things? We will be considering the direction of E bar, which is in the same direction as ds bar. So what is ds bar? It is the area vector which is normal to the surface of the cylinder. And what is E bar? E bar is the direction of the electric field. I hope you know this, right? So this is the standard diagram to find the electric field intensity. So what is our main job here? We have to find the electric field intensity at point P. At point P, right? Which is at a distance r, which is at a distance small r. Small r from the charged cylinder. From the axis of charged cylinder. From the axis of charged cylinder. Everyone, please take the slide down because this is the most important part of it. So what we are doing when we want to find at a point, Gauss says, measure it. And we can say that spheres जो हमने last time पढ़ा था, वो co-concentric थे. मतलब दोनों का सेंटर सेम था. और जब हम सिलेंडर्स की बात करते तो वर्ड कौन सा आना चाहिए? कोएक्सियल. बिकॉज जो दोनों शेप है उनका क्या है कॉमन? एक्सिस कॉमन है.
तो हम इनको कहते हैं कोएक्सियल। और हमारा जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है, ये वाला आपका प्योरली इमेजिनरी है, इसलिए हम इसको डॉटेड ड्रॉ करते हैं। और ये थोड़ा सा ही लेंथ कवर कर रहे हैं, सो दिस यू कैन इवन टेक दिस लेंथ एज एल, क्योंकि हमारा जो अंदर वाला सिलेंडर है वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, वो उसको कोई फिक्स लेंथ नहीं है, उसको कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है. So this is the infinite cylinder and this is the Gaussian cylinder. I hope this is clear. So B is the imaginary cylinder or the Gaussian surface and A is the actual. So ये अपना A है और ये जो बाहर वाला है वो अपना B है. Please take this slide down, everybody. Yeah, is it done? Yeah, you will have to go through lecture number 1 if you have to understand this lecture, obviously, because it's the same steps but application keeps changing. Yeah, I'll wait. Yeah, I'll give you 1 more minute.
Okay, so I'm moving to the derivation. So we are going to do it exactly like we did last time. Nusrat, it's not possible for us to take the length of the cylinder, no? I mean, it's infinite. What length will you take? What length you will take? And anyway, the charge is same anywhere. You know, infinite पे uniform charge है. तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप कोई भी लेंथ लो, चार्ज तो क्यू ही है ना. समझ रहे हैं? तो लेंथ आप छोटा लो, बड़ा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ. नो नो महक, इंडिपेंडेंट नहीं है, लेंथ पे डिपेंड जरूर करेगा. क्योंकि इसलिए तो मैंने एल लिखा है आपको, क्योंकि जो गॉसियन के अंदर से झांक के देखते हैं, याद है लास्ट लेक्चर में आपको क्या बोला था? गॉसियन पे खड़े रहना है और अंदर देखना है. तो अगर कोई गॉसियन पे खड़ा होता है, यानी कि पॉइंट पी पर खड़ा होता है, ये जो पी पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पर, अगर वो वहां खड़ा होके अंदर देख रहा है तो उसको वो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसको वो दिख रहा है. और कितने लेंथ तक उसको दिखेगा? एल लेंथ तक दिखेगा. हाँ, सिलेंडर का है ना, बट हम लोग सिलेंडर से डेरिवेशन नहीं करते. प्रथम, हमने कभी सिलेंडर से डेरिवेशन नहीं किया, हम हमेशा गॉसियन सरफेस से डेरिवेशन करते हैं. लास्ट लेक्चर में अगर आप भूल रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम कैपिटल आर में ले रहे थे, स्मॉल आर में ले रहे थे, कैपिटल आर में नहीं आया था आंसर. हम हमारा पॉइंट अभी कहाँ है? आउटसाइड है कि ऑन द सरफेस है कि इनसाइड है? हमारा आउटसाइड है. अगर आउटसाइड है तो हमारा डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर है. इज दिस क्लियर? अब सुन लो पहला पॉइंट. पहला पॉइंट, लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ. लास्ट टाइम हमने सिग्मा लिया था, यहां पर हम लैम्बडा ले रहे हैं. Nusrat, your question is irrelevant here because we are talking about the Gaussian surface, and when it is a sphere, वो पूरे sphere को cover करता है. But when it is an infinite cylinder, the word is infinite. When the word is infinite, it means that it does not have any finite length, right? So the question is irrelevant here. If you have some other question, or you could frame it more better so that I can understand, then you can reframe the question you asked me. Because that question itself is not valid only. जो आप पूछ रहे वो irrelevant है. Because infinite का length is, how can I say the length of infinite? So कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि चार्ज तो अंदर क्यू ही है. आप चाहे 5 मीटर ले या 10 मीटर ले, आप अंदर झांक के देखेंगे तो आपका चार्ज क्यू ही होगा ना. करेक्ट, क्यू ही होगा. सो क्या फर्क पड़ता है? हम सिर्फ थोड़ा सा लेंथ लेके कर रहे हैं, जैसे हम लोग पहले लेते थे. अगर इतने लेंथ पे इतना इफेक्ट है तो पूरे लेंथ पे हम निकाल सकेंगे. सो व्हाट इज क्यू इक्वल टू? क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल. क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल. सेकेंड पॉइंट, E bar dot ds bar. I hope everyone remembers this. ये क्या है? This is nothing but E ds cos theta. E ds cos theta. जो हम लोग last time भी वही कर रहे थे. This is the flux. This is the flux through the area ds. Because हम हमेशा पहले छोटा एरिया लेते हैं. हमने क्या किया है, अगर यहाँ पॉइंट है तो हमने सिर्फ इतना रीजन लिया है जो ds बार है. यू अंडरस्टैंड? हमने पूरा नहीं लिया है. सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू ds बार, विच इज इक्वल टू E इंटू ds, बिकॉज यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 is 1. राइट? सो हमें वापस हमारा फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? E ds मिल रहा है. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इतना छोटा सरफेस. राइट? हमें सिर्फ इंटरेस्ट सिर्फ ये सरफेस पे नहीं है. हम तो जानना चाहते हैं कि हमारा जो पूरा गॉसियन है, यानी कि इतना अगर पूरा हमारा गॉसियन है तो वो क्या ले रहा है.
पूरा गॉसियन कितना ले रहा है. सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface, the electric flux through the Gaussian surface phi is equal to close integral of E ds. राइट. ये सिर्फ छोटे के लिए है, पूरा चाहिए तो हमें क्लोज इंटीग्रेशन लेना पड़ता है. सो देयरफॉर हम लोग क्या करते थे, डज एनीबॉडी रिमेम्बर हमने क्या किया था? टोटल फ्लक्स निकालते टाइम हम क्या करते थे? टोटल फ्लक्स निकालते टाइम हम ई को बाहर लेते थे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? आर ही रहेगा. सेम थिंग यहां पर लो, पॉइंट आप कहीं पर भी लो, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस will remain r only. So this is going to be nothing but E into what is the area? This is going to be 2 pi r into L. Right? This is going to be our area. 2 pi r h. सुना रहेगा ना आपने? 2 pi r h. राइट. सो इंस्टेड ऑफ h हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? ये सिलेंडर गॉसियन का लेंथ कितना है? हमने गॉसियन सिलेंडर का लेंथ कितना लिया है? L लिया है. जैसे हम लोग स्फीयर में क्या ले रहे थे? स्मॉल आर ले रहे थे, 4 पाई आर स्क्वायर लिया था हमने. सो द टोटल फ्लक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस, total flux that we are taking is going to be from the Gaussian surface only, and that is nothing but 2 pi r L, which is equal to phi. Right? But according to Gauss's theorem, everyone knows what is phi. According to Gauss's theorem, what is phi? Phi is nothing but Q upon epsilon naught. According to Gauss's theorem, phi is nothing but Q upon epsilon naught. ये सबको पता है. तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे हम वहां कर रहे थे. हमारा डेरिवेशन सेम रहता है, बट just give me a minute. हमारा डेरिवेशन सेम रहता है, बट हम यहाँ Q इज इक्वल टू क्या डालने वाले हैं? Q अपॉन फाई इज इक्वल टू क्या डालने वाले? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. I hope this is clear to you. Right? So therefore, am I audible, guys? Can you hear me? Yeah. So Priyanka from Borivali, I think you should check your system, please. So now I am just substituting, instead of phi, I am substituting Q upon epsilon naught. So Q upon epsilon naught is equal to E into 2 pi r L. So what is my electric field formula? My electric field formula is Q upon 2 pi r L into epsilon naught. Right? Anybody in this class who will tell me what is Q upon lambda? Sorry, Q upon L. Q upon L is nothing but lambda, which is nothing but linear charge density. ये क्या है अपना? Linear charge density.
इसका ये मतलब है Q अपॉन L इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। ये हमारा फॉर्मूला होगा फॉर आउटसाइड, फॉर आउटसाइड। तो यहां पर भी आपके पास दो फॉर्मूला है, ये भी यूज कर सकते हैं आप, या नीचे वाला यूज कर सकते हैं अगर आपको लैम्डा दिया है। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर। पॉइंट कहां लिया है हमने? आउटसाइड लिया। मान लेते हैं कि हम ऑन द सरफेस लेते हैं, हमेशा ऑन द सरफेस मैक्सिमम रहता है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अगर पॉइंट पी को यहां से निकाल के हम यहां लेके आते हैं, सपोज हम ये पॉइंट पे लेके आते हैं, यहां से लेके हम यहां लेके आते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r? सो वी कैन से दिस पॉइंट, दिस इज द सिलेंडर ना, आपका सिलेंडर तो यहां है। हमने पॉइंट कहां लिया था? हमने पॉइंट सिलेंडर के बाहर लिया था। अगर हम इस P पॉइंट को शिफ्ट करके ऑन द सरफेस लेके आते हैं, इसका मतलब है, इसका मतलब है on the surface of the charge cylinder, on the surface of the charge cylinder, I can say capital R becomes equal to small r. So if point P lies on the surface of the charge cylinder, capital R becomes equal to small r. So आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught capital R. This is the electric field formula. I hope this is very clear. Capital R becomes equal to small r. Capital R has become equal to small r. Right? So this is going to be nothing but ये वाला जो स्मॉल r था, हमने सिर्फ छोटा सा ये किया है, वहां कैपिटल R। ये क्लियर है आपको? सबको समझ रहा है? इट इज वेरी सिंपल। Therefore we say that we have found the electric field outside as well as we have found the electric field on the surface of the charge cylinder. चार्ज हमेशा सिलेंडर पे है, गॉसियन पे नहीं। गॉसियन तो हमारा इमेजिनरी सरफेस है जहां से हम इसको निकालते हैं। पॉइंट पी को हम बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं। अगर हम पॉइंट पी को बाहर से अंदर लेके आएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे था, यहाँ लेके आए उसको, तो क्या हो गया? व्हेन इट रीचेस हियर, ऑब्वियसली द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी कैपिटल R, क्योंकि देखो ऊपर हमने कैपिटल R ड्रॉ किया है। तो यहाँ से लेके, एक्सिस से लेके यहाँ तक स्मॉल r होगा। अगर आप देखेंगे, मैंने पहले यहाँ पे कैपिटल R को डिफाइन किया था, कम हो गया ना। हम लोग कहाँ ले रहे थे? ये अपना सिलेंडर है, ओरिजिनल सिलेंडर है, ये अपना एक्सिस है, यहाँ पे प्लस 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 है, ऐसे। ठीक है, पॉइंट P हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ स्मॉल r ले रहे हैं, ये डिस्टेंस कैपिटल R ले रहे हैं। यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिनरी। फिर हम क्या कर रहे हैं? ये पॉइंट P को यहाँ लेके आ गए। अगर आप यहाँ लेके आए तो ये डिस्टेंस एक्सिस से ही पकड़ते हैं ना, तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज बी कैपिटल R। नाउ आई वॉन्ट टू सी, सो ये मेरा केस 1 था, जो पॉइंट नंबर 5 था, ये मेरा केस 1 था जहां मैंने ऑन द सरफेस देखा था। केस 2, if point P lies inside the cylinder, मतलब इनसाइड ले रहे हैं अभी, तो आपको आंसर तो पता ही है 0 है, बट हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा, राइट? तो ये अगर हमारा
I have to draw it properly. So case 2, if point P lies inside the charged cylinder or charged wire, चार्ज सिलेंडर या चार्ज्ड वायर, अगर वो इनसाइड है तो ये हमारा सिलेंडर है एक्चुअल वाला, और हमने पॉइंट ले लिया अंदर, यहां पॉइंट ले लिया, ये छोटू सा डिस्टेंस आर है, ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है। तो अगर आप यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं तो सिलेंडर कुछ ऐसे आने वाला है यहाँ पे। सो ये हमारा गॉसियन सिलेंडर है, ये हमारा गॉसियन है, और ये हमारा चार्ज सिलेंडर है, ये हमारा चार्ज्ड सिलेंडर है। तो हमने कैसे डिस्टेंस लिया है, हमारा कैपिटल आर इज ग्रेटर, कैन आई से लाइक दैट, हमारा कैपिटल आर इज ग्रेटर देन द स्मॉल आर, सो कैन आई से दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, बिकॉज हमारे फर्स्ट केस में हमारा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, बिकॉज जब हम आउटसाइड लेते हैं हमारा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। हम जब ऑन द सरफेस लेते हैं तो ये दोनों इक्वल है, बट जब हम इनसाइड लेते हैं तो हमारा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि हम गॉसियन के ऊपर खड़ा रहते हैं, अंदर देख रहे हैं झांक के, तो अंदर तो नहीं है हमारे पास चार्ज, यहां पर हमारा चार्ज ही 0 हो रहा है। अगर आपका चार्ज ही 0 हो रहा है, लैम्बडा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, विच विल ऑब्वियसली बी 0। लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, विच इज ऑब्वियसली व्हाट, 0। और अगर ऐसा है तो क्या हम बोल सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड is going to be 0. I hope you get what I'm saying. अगर हमारा चार्ज 0 है तो हमारा लैम्बडा 0 है, और अगर हमारा लैम्बडा 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। तो इनसाइड इज 0, ऑन द सरफेस इज दिस, एंड दिस इज आउटसाइड। इस तरीके से हमारे पास 3 फॉर्मूला है। So what have we done? We have done the derivation for the electric field intensity at the point P, which is at a distance of small r from the axis of the charge cylinder। जो black में दिखाई दे रहा है वो हमारा actual infinitely long charge cylinder है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है। We are taking a point P at a distance of small r, and we have drawn a surface which is called as a Gaussian surface, right? A Gaussian surface वो surface होता है जो चार्ज को एनक्लोज करना चाहिए, तो ही वहां पर इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हमारा गॉसियन सरफेस चार्ज को एनक्लोज नहीं करता तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमने पहले स्टेप में क्या लिखा, हमने लिखा कि लैम्बडा को डिफाइन किया, क्योंकि जब हम स्फीयर की बात कर रहे थे तब हम सरफेस की बात कर रहे थे, सिग्मा की बात कर रहे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे। पर जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो हम उसके लेंथ पे ज्यादा करते हैं, एंड देयरफॉर वी आर कंसिडरिंग व्हाट इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्बडा इज इक्वल टू Q by L एंड Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L, इसलिए हमें चार्ज मिला है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, बिकॉज वी वर टेकिंग ओनली थ्रू द एरिया ds विदाउट गॉसियन सरफेस। हम कोई भी डेरिवेशन तीनों केस नहीं कर सकते, तीनों केस में हमें गॉसियन सरफेस लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट केस में हमारा गॉसियन बाहर है, सेकेंड केस में हमारा गॉसियन इसके साथ मिल गया, इसके साथ कंबाइन हो गया, श्रिंक हो गया, और हमारे थर्ड केस में हमारा गॉसियन अंदर चला गया।
तो तीनों केस में बिना गॉसियन के कोई भी डेरिवेशन नहीं हो सकता। ये गॉसेस लॉ की इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हमने क्या कहा है, हम लोग सिर्फ डीएस ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले सिर्फ छोटा सरफेस ले रहे हैं, तो हमने पी को एनक्लोज किया और हमने लिखा ई इंटू डीएस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, पॉइंट नंबर 3, इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। ई हमारा कांस्टेंट है हर जगह पे, इसलिए हम ई को बाहर लेके आते हैं। तो इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका बनेगा, डीएस का, एंड क्लोज इंटीग्रल में ये हो गया 2 पाई आर एल। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसलिए हमने यहां लिखा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन लेफ्ट साइड पे, जहां पर हमारा फाई था वहां पर हमने लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, एंड इज इक्वल टू नथिंग बट ई इंटू 2 पाई आर एच, एंड एच हमारा एल है। वी रीअरेंज्ड इट, and we brought this entire term down. But you know that q upon l is nothing but lambda. तो हमने q upon l को substitute किया as lambda, and we got the derivation to find the electric field outside. अब हमें ऑन द सरफेस लेना था, तो हमने ये जो आपको गॉसियन दिखा रहे हैं हम लोग, इस गॉसियन को हमने श्रिंक किया। श्रिंक किया मतलब वो यहां आ गया, कम किया, उसको ऑन द सरफेस लेके आना था आपको। तो जैसे हमने श्रिंक किया तो हमारा कैपिटल आर और हमारा स्मॉल आर क्या है, इक्वल हो गया। जहां स्मॉल आर है हमने वहां कैपिटल आर डाल दिया। और लास्ट जब हमारा पॉइंट क्या था, इनसाइड था, तो हमारा स्मॉल आर इज लेस देन हमारा कैपिटल आर। दैट मीन्स इनसाइड हमारा चार्ज क्या है, 0 है, और अगर ऐसा है तो लैम्डा भी 0 है। इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। सो प्लीज रिमेंबर दैट विदाउट गॉसियन हम कुछ कर ही नहीं सकते। व्हाट इज द पॉइंट हियर? इफ यू रिमेंबर, इफ यू फॉरगेट द हेडिंग, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। बिना गॉसेस लॉ के आप कोई भी केस, कोई भी डेरिवेशन नहीं कर सकते। सो वी हैव फिनिश्ड दिस, वी आर एट द सेकंड वन, that is to find the electric field at a point which is outside, on the surface, or inside a long cylinder. Please write it down. That's what I'm trying to tell you. I'm telling you that this is an application of Gauss's theorem. So how can we derive without it? Without Gaussian surface, you cannot derive a single theorem. Is it clear? Is it over, everybody? Is this slide over? I hope you're making notes because we need each and every part of the derivation. Next slide.
Is it done? Okay, next slide. That was case 1 and this is case 2. If the point P lies inside the charged cylinder. Yeah, last slide. Okay. Done. Can I change it? Sneha Ram. Okay. Case 2, if the point P lies inside. Is it over? Okay. So this is if the point is inside, and we have looked at two major applications using Gauss's law and Gaussian surface. So it's a principle that we are applying, it is a method that we are applying to find the electric field. Just like you use a method to find the area or you find the volume, just like that, we have a very unique method to find electric field. Just like you use a formula called V is equal to IR to find potential in current electricity, just like you use series or parallel formula. So this is a unique method, a unique formula which Gauss has. Gauss is the name of the scientist. He has come out with this particular derivation to find out the electric field anywhere, outside, inside, or on the surface. And as you can observe, the graph of this also will be something similar to what you found in the previous. That means if I have to draw a graph of electric field versus R, it will also be something like this and decreasing like this. So this is going to be your 0 to capital R. And as we go from the radius
obviously the electric field starts decreasing. It is maximum on the surface only. तो चाहे मैंने स्फीयर पूछा, चाहे मैंने सिलेंडर पूछा, ग्राफिकली दोनों सेम रहेगा बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड डन in the MCQ lecture. I think it was lecture number 15. So if you remember, there was electric field versus R, because यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और R का रिलेशन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं. So let's move on to the next one, and this is the diagram for the next one. That is the third application of Gauss's law, 8.2.3 basically. This is electric field due to a charged infinite thin plane sheet. Thin plane sheet. एकदम पतला शीट है, पेपर की तरह पतला है वो. So it is the electric field due to a charged infinite thin plane sheet. And this will be the diagram. And what you're seeing here is nothing but, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, this is nothing but a thin infinite plane sheet जो इस तरफ एक साइड से आपको दिख रहा है. यानी कि अगर मैं आगे से देखूं तो भी प्लस रहेगा. इतना पतला है, इतना पतला है कि यहां से देखूं तो भी प्लस दिखेगा, इधर से देखूं तो भी वो चार्ज दिखेगा मुझे. बहुत ही पतला है. यस, विड्थ मैटर करता है. विड्थ मैटर करेगा ना, कि नहीं तो वो चार्ज जो यहाँ दिख रहा है वो इट्स वेरी क्लियर, इट्स अ वेरी थिन प्लेन शीट. इट्स एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट. अब थिन प्लेन शीट में चार्ज एनक्लोज करने के लिए हमें गॉसियन चाहिए था. तो कैसा गॉसियन यूज करेंगे? जैसे स्फीयर का गॉसियन स्फीयर जैसा दिखता है, सिलेंडर का गॉसियन सिलेंडर जैसा दिखता है. बट ये पतला थिन शीट जो है, पतला है एकदम, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक सिलिंड्रिकल शेप ले लें, बिकॉज वी कैनॉट टेक द शेप ऑफ द थिन प्लेन शीट. बहुत ही पतला है, तो हमने जो सिलेंडर कंसिडर किया है उसको हमने पंच किया है. इट्स लाइक अ पंच थ्रू, बिकॉज दोनों तरफ चार्ज है ना, एक ही साइड में थोड़े ना है. तो हमने दोनों तरफ ले दिया है, मतलब हमने उसको पंच कर दिया. Is it real? No, it's an imaginary structure. So this is the Gaussian surface. The green one is the Gaussian surface जो गॉसेस ने इस डेरिवेशन के लिए चुना है. एंड दिस इज नथिंग बट द थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट जो हमने येलो में दिखाया है आपको. So we couldn't consider a plane sheet, so we took a cylindrical structure and we punched it through, and the distance from this surface, अगर आप देखेंगे कोई भी पॉइंट अगर P मैंने यहाँ बाहर लिया है, just like other derivation, so यहाँ से लेके इस सरफेस से लेके ये P तक का डिस्टेंस क्या है? R है. सरफेस से लेके बाहर के P तक का डिस्टेंस R है. वो दोनों तरफ R ही रहेगा, आगे और पीछे दोनों तरफ R ही रहने वाला है. So please take down the diagram first. Please take down the diagram first for this. यहाँ पे कैपिटल R वगैरह है ही नहीं बेटा. कैपिटल R किसका होता था? एक्चुअल सिलेंडर का. एक्चुअल सिलेंडर का कैपिटल R. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो शेप ही प्लेन शीट है ना, सिलेंडर नहीं है, स्फीयर नहीं है, राइट? So please take this diagram down. This is another important derivation of the 12th standard.
बिकॉज वी हैव बोथ साइड्स रसिका। एक साइड अगर पी लिया है तो दूसरे साइड पी डैश लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम डिस्टेंस आर पे ही है। इट्स जस्ट अनदर पॉइंट बेटा। या नहीं ना महक, इट्स अ प्लेन शीट। कैपिटल आर रेडियस होता है, शीट का रेडियस होता है बेटा महक? नहीं, स्फीयर का रेडियस हो सकता है, जो गोल होता है उसका रेडियस होता है, प्लेन शीट का रेडियस नहीं हो सकता। तो हम और कुछ चीज को नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमने ये लिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी हमें करनी नहीं थी। आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। विड्थ है ही नहीं नुसरत, इट्स अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। द width is negligible, the width is not considered। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, कुछ भी ले सकते हैं आप, क्यूब है यू नो, बट वी आर कीपिंग आवर डेरिवेशंस लिमिटेड। मतलब आपके पोर्शन में, आपके सिलेबस में सिर्फ सिलेंडर है, स्फीयर है और प्लेन शीट है। मनीष, हमने स्फीयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्फीयर का स्ट्रक्चर याद है आपको, मैंने बहुत पहले समझाया था जब मैं आपको क्यूबॉइड समझा रही थी। अगर आप स्फीयर लेते हैं ना तो उसका हर जगह पे वेक्टर डिफरेंट रहता है, याद है आपको? ऐसा कुछ बताया था मैंने। सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है मनीष उसका, तो वैसा लेंगे तो और कंफ्यूजन आएगा तो खाली फुकट उसको। सी, जब भी हम कुछ चीज करते हैं, हम साइंस की जो बेसिक नेचर होती है, साइंस क्या करने की कोशिश करती है, आप आज एक मोबाइल लेते हो, कल एक बेहतरीन और मोबाइल आता है। वी ट्राई टू सिंप्लीफाई। तो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका जितना इमेजिनेशन जाता है आप उसको कर सकते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन इज द मोटो। आप समझ रहे हैं? अभी आप टाइप कर रहे हैं, कुछ साल बाद आप फोन से बातें करेंगे, फोन यहाँ कॉल लगाओ, वहां कॉल लगाओ, हम स्पीच प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, है कि नहीं? आज तो आप बड़ा टाइप कर रहे हैं, कल के आने वाले कल में आप क्या करोगे? सिर्फ बोलोगे और अपने आप वो टाइप करेगा। इनफैक्ट अभी भी चलता है बट थोड़ा गलती हो जाता है, राइट? इतना परफेक्ट नहीं है, तो आप कुछ और बोलते हो और कुछ और लिख देगा वो। इज द डायग्राम ओवर एवरीबॉडी? सो लेट्स कम व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली। तो ये हमारा प्लेन शीट है, ये हमारा प्लेन शीट है, और हम ये पॉइंट ले रहे हैं, पी है हमारा पॉइंट। तो हमने क्या करना था, हमें एनक्लोज करना था, तो हमने ये डिस्टेंस लिया आर। अब लास्ट टाइम की तरह तो हम नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ एक सिलेंडर बनाई जो पंच थ्रू जा रहा है, ऐसे आ रहा है, दोनों तरफ चार्ज है। सो नाउ आपको क्या लग रहा है यहाँ पे ये सरफेस पे कितना चार्ज है? हम इसका इंपॉर्टेंस है, जितना सिलेंडर, ये गॉसियन है ना, तो जितना सिलेंडर एनक्लोज करेगा, इसलिए हम यहाँ लैम्बडा की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो दोनों में बहुत फर्क है। ये सिलेंडर का कौन सा सरफेस होता है? ये सिलेंडर का कौन सा सरफेस होता है? प्लेन सरफेस। जबकि हम यहाँ जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हमारा गॉसियन कौन से सरफेस से निकल रहा था? कर्व्ड सरफेस से। समझ रहे डिफरेंस? हमारा यहाँ पर जो पॉइंट से हम ये जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है, ये कौन सा सरफेस है? कर्व्ड। ऊपर पे तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। क्यों नहीं कंसिडर किया, कोई सोच सकता है? मैंने ये बहुत पहले बताया था कि अगर ये एक्सिस है और ये आपका ए बार है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसा ले रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों के बीच का एंगल क्या है? ई और ए के बीच का एंगल क्या है? 90 है। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो क्या फ्लक्स होगा वहां पे? फ्लक्स होगा? नहीं है। तो इसलिए हमने ये वाला सरफेस तो डेरिवेशन में कंसिडर ही नहीं किया।
जबकि यहाँ पर हम जो सरफेस को ले रहे हैं, जो बाहर की तरफ आ रहा है, कौन सा सरफेस है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, यही हमारा ई बार है, क्योंकि हमारा चार्ज यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और यही हमारा डीएस बार है। बराबर है। सो यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, हमें इसकी शेप नहीं पता, बट हम उसको क्या ले सकते हैं, क्या हम उसको डीएस ले सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द एरिया, सो वी कैन टेक दिस एज क्यू अपॉन डीएस ऑल्सो। पूरा प्लेन शीट तो नहीं ले रहे, जितना ये पी का ये जो सिलेंडर है, ये जितना एरिया ले रहा है, हम उतना ही एरिया ले रहे हैं। So I can write Q upon ds. So what is Q equal to? Can I write it as sigma into ds? What is sigma? Everyone knows sigma is surface charge density. Now, it's just the area considered. कितना area है, you know, that area. So यहाँ पर मैंने वो area A लिया, ds लिया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हम हमेशा देख रहे हैं कि अगर ये गॉसियन सरफेस है तो आप इसके अंदर झांक के देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, ds दिख रहा है? Yes or no? Yes, ds is only area, no? पूरा एरिया हम ले ही नहीं सकते, हमारे पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे हमारा चार्ज सेम ही है। तुम कहीं पर भी डाल के देखो। अच्छा, तुम मेरे को ये बताओ, प्लेन शीट पे चार्ज कितना है? प्लेन शीट पे चार्ज क्यू ही है। चाहे आप पूरा सरफेस ले लो, थोड़ा सरफेस लो, चार्ज तो क्यू ही है ना, क्यू ही है। चार्ज इज ओनली क्यू। अगर आप पूरा भी लेते हो तो चार्ज क्यू ही है। वी हैव नॉट चेंज चार्ज एवरीवेयर। ये यूनिफॉर्म चार्जिंग हुआ है प्लेन शीट का। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आपके स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहनते थे, सब लोग सेम ही दिखते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स सेम एनीवेयर। आप सिलेंडर यहाँ लो, ऊपर लो, नीचे लो, कैसे भी आप सिलेंडर लो, चार्ज तो वो क्यू को ही एनक्लोज करने वाला है। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन, नॉट गॉसेस थ्योरम, वी नो दिस। हम सेम स्टेप्स यूज कर रहे हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट द टोटल फ्लक्स। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स through the closed surface? Total flux through the closed surface. अब ये जो क्लोज सरफेस है वो दोनों साइड से क्लोज्ड है। आपको समझ में आ गया है? यहां से देखो, यहां से देखो, लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, आपको दो दो एरिया दिखेगा। दो एरिया है यहाँ पे। Are you getting it? So I'll write it in the same way so that you know the total flux is going to be, I will just write it as closed integral E bar dot ds bar, and which is nothing but closed integral of E ds cos theta. We already know this. Theta is 0, cos 0 is 1 because ds और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाला जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। आप मुझे बताओ, ये जो सरफेस है, ये जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया है, वो दो सरफेसेस को प्लेन शीट पे टच कर रहा है, एक आगे दूसरा पीछे, एक आगे दूसरा पीछे। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ सिर्फ ds नहीं 2ds आएगा? यहाँ सिर्फ ds नहीं, यहाँ 2ds आएगा। That means I am getting it as, I'm going to get it as flux is equal to E into 2ds। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई डेफिनेट एरिया नहीं है। जैसे स्फीयर में हमने 4πr² लिखा, सिलेंडर में हमने 2πrh लिखा, यहाँ पे तो यार हमें सिर्फ जो दिख रहा है वही दिख सकते हैं, and we can only see a small area ds, so we are writing it as 2ds. What is this according to Gauss's law? This is q upon epsilon.
which is E into 2ds. So what is electric field? Electric field has become Q upon something like this. Can anybody see a sigma here? ये फॉर्मूला में क्या आपको सिग्मा दिख रहा है क्या? क्या आपको सिग्मा दिख रहा है? क्या आपको यहां ये सिग्मा दिख रहा है? Q upon ds. Can you see this? Yes, Q upon ds is sigma. इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, can I say it has become sigma upon epsilon naught? No, sigma upon 2 epsilon naught. This is the formula for electric field at a point just outside the thin plane sheet. इनसाइड का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि प्लेट ही इतना थिन है, कहां से अंदर जाएंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो पॉइंट P है, ये जो आंसर है, दिस इज सेम फॉर आउटसाइड एंड ऑन, बिकॉज इधर कोई आउटसाइड ऑन नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेन शीट है ना, ये पॉइंट आपको दिखाने के लिए ऐसा लग रहा है कि पॉइंट P बहुत दूर है, ये डिस्टेंस बहुत ही नजदीक है। इसलिए ये डेरिवेशन में 3 केसेस नहीं आएगा, एक ही केस आएगा, और हम बोलेंगे कि कोई भी पॉइंट आप प्लेट के कहीं पर भी ले लो, आंसर इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे केस 1 केस 2 ऐसा कुछ भी नहीं है, केस 1 केस 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसाइड तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि थिन प्लेन शीट है। प्रीवियस केस में हो सकता है क्योंकि हम लोग बोल रहे थे हॉलो स्फीयर होगा, मेटल का सॉलिड स्फीयर होगा, हम बहुत सारे कंडीशंस डाल रहे थे। Are you getting it? Are you getting what I am saying? Yes or no? समझ रहा है? तो इसमें बहुत, हाँ हम सिग्मा ही लेते हैं बेटा, क्योंकि लैम्बडा क्या लेंगे ना, प्लेट का लेंथ थोड़ा ना होता है, प्लेट का सरफेस होता है। तू खाने का प्लेट लेती है तो उधर सरफेस दिख रहा है, तेरे को लेंथ दिख रहा है। चावल तू लाइन में लगा रही है या चावल को फैला रही है। अब ये तो मैथमेटिक्स हो गई। आप मुझे बोल रहे हो कि आप लैम्बडा क्यों नहीं ले रहे? लैम्बडा कैसे लेंगे? सरफेस है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब प्लेट, प्लेट घर पे प्लेट होगा ना, जाके प्लेट को हाथ लगाओ, इट्स अ सरफेस, एंड दिस वी आर टेकिंग अ वेरी थिन इनफाइनाइट, एकदम पतला। वो देखा है वो जो हम स्वीट्स खाते हैं तभी हम जैसे लेयर ऑफ सिल्वर दिखता है उसमें कुछ, वो जो बंगाली स्वीट्स होती है उसमें देखा है वो थिन इनफाइनाइट लेयर होती है, वो जो चांदी चांदी जैसा दिखता है तुमको, उसको तुम जरा उठा के भी बताओगे मेरे को तो बहुत बड़ी बात होगी, इतना पतला है ये। आप समझ रहे? इतना पतला है, कहाँ से इसके अंदर झांक के देखेंगे हम लोग? समझ रहे? सो अंदर अंदर तो सवाल ही नहीं है, एंड बाहर जो है वो पॉइंट भी बहुत नजदीक है। ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लीज टेक इट डाउन। या दिव्या, एवरीथिंग इतना पतला है कि कहाँ से आप अंदर बाहर करोगे नहीं, सबका सेम है, आंसर विल रिमेन सेम, नो चेंज। बिकॉज कृष्णा आप लेफ्ट से भी देख रहे हैं और राइट से भी देख रहे हैं, एंड द गॉसियन जो सरफेस है आपका, जो गॉसियन आपने ड्रॉ किया रहेगा ना, तो वो गॉसियन सरफेस कैसा है देखो, गॉसियन दोनों तरफ है ना, तो दोनों तरफ का एरिया आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आपके प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, गॉसियन कैसा था, अंदर बाहर का सवाल नहीं, वो एनक्लोज कर रहा था पूरे इसको, पंच थ्रू नहीं कर रहा था। ये हमने जो गॉसियन लिया है, इट इज पंच थ्रू, पंच थ्रू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पंच थ्रू। यप, दोनों तरफ आएगा फ्लक्स।
अरे एज सिंपल एज, मैं तुमको बताऊं क्या, एज सिंपल एज अगर हम लोग स्फीयर लेते हैं तो फ्लक्स ऐसा था, बराबर है। तो हमने यहाँ पे इसको एनक्लोज कर दिया, समझ रहे हैं, एनक्लोज कर दिया। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस था वो भी स्फीयर ही था, ठीक है। फिर हम लोग जब सिलेंडर ले रहे थे तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से आ रहा है, साइड से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसको पकड़ना था तो हमने यहाँ एनक्लोज कर दिया, यहाँ एनक्लोज कर दिया, क्योंकि हमें इसको पकड़ना था। अगर हम लोग प्लेन शीट लेंगे, प्लेन शीट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है। अभी इसको पकड़े कैसे, प्लेन शीट पे प्लेन शीट नहीं रख सकते ना। तो हमने एक ऐसा शेप बनाया जो यहाँ पर भी पकड़ेगा और पीछे वाले को भी पकड़ लेगा। गॉट इट। सो हम पंच थ्रू कर रहे हैं, यानी कि ये अगर हमारा शेप है तो हम सिलेंडर ऐसा ले रहे हैं ताकि वो पीछे का साइड का भी लेगा और आगे का भी लेगा। गॉट इट। नथिंग नथिंग नुसरत, नथिंग हियर। जो जो ये सब आएगा ही नहीं बेटा, कुछ नहीं आएगा। जो तू बोल रही है ना वो कुछ नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। आंसर इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस, यस प्रणय, आप ऐसा भी बोल सकते। बिकॉज दिस इज ऑल यू नो, दैट्स व्हाट, नो, इसलिए फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा है ना नुसरत, फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा है। पहले ऐसा था नहीं ना, मैं लिख रही थी 3 केसेस। यू रिमेम्बर नुसरत, मैंने 3 केस लिखा। कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। दोनों डेरिवेशन में मैंने ऐसा लिखा। और यहाँ डेरिवेशन में कुछ आर ही नहीं दिख रहा है तुझे, काय का 3 पार्ट्स रहेगा, आर ही नहीं है फॉर्मूला में। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस, और इट इज सिग्मा अपॉन, इट इज सिग्मा अपॉन 2 ds। केसेस ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, आर ही नहीं है ना यहाँ पे। हम आर की भाषा ही नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि द डिस्टेंस दैट वी आर टेकिंग इज जस्ट आउटसाइड, बेसिकली। एंड थिन प्लेन शीट में वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर। यस, आई वुड, आई होप ऑल ऑफ यू हैव द टेक्स्ट बुक, है आप लोगों के पास ना। हम पेज नंबर 188 पे है, टेक्स्ट बुक के 188 पे हमारा तीसरा डेरिवेशन है इस चैप्टर का, तीसरा डेरिवेशन है इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आने वाले कुछ लेक्चर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं करें। एंड जो भी है अगर आप ऑनलाइन अटेंड करेंगे तो बेटर है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप रिकॉर्डेड सुनते हैं तो उतना आपका डाउट्स क्लियर नहीं होता। यस राम। और अगर आपने 11th के सारे लेक्चर्स, स्नेहा 188 बेटा, मैं 188 पे हूँ फिलहाल, 186 पे चैप्टर चालू हुआ और मैं पेज 188 पे हूँ। कैन आई शिफ्ट दिस स्लाइड, ये स्लाइड पढ़ के होगा सबका। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप ये तीनों डेरिवेशन थोड़ा लिख के सीख ले, बिकॉज ये आपको काफी, जब मैं एमसीक्यू करूंगी इससे रिलेटेड, जब मैं एमसीक्यू करूंगी तो आपको कोरिलेशन में इजियर पड़ेगा। ओके, ये पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 12th का, वो बेसिकली गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर में डिवाइडेड है।
नो, वी वोंट डू दैट हेमांगनी. मैं समझ गई आपका डाउट, बट वो नहीं करेंगे हम, बिकॉज वी आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट व्हाट वी आर, लाइक हाउ मच टू टेक, बिकॉज द चार्ज एनक्लोज्ड इज गोइंग टू रिमेन क्यू ओनली. तो आप बड़ा सर्कल ले, छोटा सर्कल ले, आप समझ रहे, तो आप खाली फुकट वो रेडियस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. कंसेप्ट गॉसियन का शेप नहीं है, कंसेप्ट गॉसियन के शेप पे नहीं है. आपने कहीं पर भी गॉसियन का शेप, मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सर्कल ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. उससे क्या फर्क पड़ता है? चार्ज एनक्लोज क्या कर रहा है? वो क्यू. यू अंडरस्टूड? गॉसेस क्या कह रहा है? क्या गॉसेस का लॉ क्या है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डज इट डिपेंड ऑन द शेप? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में तुमको एरिया दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? नो हेमांगनी, नहीं है. कोई भी हम गॉसेस लॉ की सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, गॉसेस लॉ. ठीक है, ठीक है. हम सिर्फ पता लगा रहे हैं कि हमने जो शेप कंसिडर किया है उसके अंदर कितना चार्ज है, बस. यस, यस दिव्या, बहुत सारे हैं एक्चुअली, बट इसमें बेस्ट 3 निकाला है हमने. Is this over? Have you completed this? Yeah, I will just quickly give it a revision. तो हमने पहले जो किया वो सिलेंडर था, या थिन वायर बोल सकते हैं आप. चार्ज्ड सिलेंडर है ये हमारा. और चार्ज्ड सिलेंडर में हमने क्या क्या यूज किया? हमने लैम्बडा यूज किया विच इज क्यू अपॉन एल. फिर हमने यूज किया फ्लक्स विच इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो गॉसेस थ्योरम है. थर्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला आउटसाइड, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. इसको कब यूज करना है? जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. हम सिलेंडर की बात करें. नेक्स्ट हमने पढ़ा है ऑन द सरफेस. On the surface, it is lambda upon 2 pi epsilon naught capital R. Fifth, inside, it is going to be 0. ये हमारा सिलेंडर है. नेक्स्ट, इनफाइनाइट प्लेन शीट. इनफाइनाइट प्लेन शीट में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बट हमने यहाँ यूज किसको किया है? सिग्मा, which is charge upon area. And we have, you can write A also, sigma is Q upon ds. And we have used E is equal to sigma upon 2ds. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा 2 फॉर्मूला है जो आप थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए यूज करेंगे, और बाकी के जो फॉर्मूला है आप वो सिलेंडर के लिए यूज करेंगे. सिलेंडर को थिन चार्ज्ड वायर भी बोल सकते हैं. सिलेंडर में हम लैम्बडा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिग्मा यूज कर रहे हैं. हम सिलेंडर में इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिख सकते हैं, यू नो दैट आई विल जस्ट टेल यू. लास्ट स्लाइड. ओके, ये वाला, दिस वन, इसके आगे वाला, दिस वन. हाँ, मैं बताने की कुछ कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है जो आपने लैम्बडा के टर्म्स में लिखा है, इसको हम सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. इसको हम सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. ये तो हमने यहाँ लैम्बडा यूज किया है. सपोज हमें सिग्मा के टर्म्स में यही फॉर्मूला लिखना है फॉर सिलेंडर, तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग लैम्बडा वी कैन कंसिडर सिग्मा ऑल्सो. You understand? So we can take sigma as charge upon area. Are you understanding? We can consider instead of this
ऐसा भी ले सकते हैं। तो Q हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πRL। तो ये नोट के हिसाब से आप लिख सकते हैं, लाइक एन एक्स्ट्रा नोट। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टोटल फ्लक्स वाला फॉर्मूला था, इट वाज E इंटू, यहां पर हम लिखते थे 2π, हाँ ये कैपिटल R होगा, क्योंकि हमारा एरिया ऑन विच इट इज चार्ज इज कैपिटल। यू नो वी कैन कंसिडर दिस ऑल्सो। तो ये हो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πRL, बिकॉज ये जो स्मॉल r है वो गॉसियन वाला है, and therefore E becomes Q upon 2πRL into epsilon naught, and this becomes sigma into 2πRL upon 2πRL into epsilon naught. 2π cancel, L cancel, right? So what are you getting? E is equal to sigma into capital R upon epsilon naught into small r. क्या आपने एक सिमिलर फॉर्मूला देखा है स्फीयर में? स्फीयर में आपने एक सिमिलर फॉर्मूला देखा है जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर होता था। सिलेंडर के इसमें कैपिटल आर का स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि मैं आपको ये ऑल्टरनेटिव भी बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि लैम्बडा में हमने डेरिवेशन किया तो सिग्मा में पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्युटली पॉसिबल। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, हम सिलेंडर के लिए भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू, ये पूरा यहां चला गया, मैंने डायरेक्टली ये बीच में से आपके डेरिवेशन के बीच में से उठाया, बिकॉज बाकी सब सेम ही रहेगा 2πRL, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q के ऐसे Q के जगह पे मैंने ये डाल दिया सिग्मा 2π कैपिटल R। सो ये आप नोट के इस पे हिसाब से लिख सकते हैं। सो वी कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा ऑल्सो, वी कैन हैव इट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ऑल्सो। गेट इट? Because when we talk about cylinder, not only the length, but it is coming on the plane surface. I mean the curved surface. तो आपके भी दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में आया रहेगा कि ये कर्व्ड सरफेस ही तो है, तो सिग्मा भी आ सकता है इसमें। बट दैट इज नॉट द केस विद स्फीयर। स्फीयर में हम लेंथ नहीं कंसिडर करेंगे, समझ रहे? वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब स्फीयर के लिए ये हम नहीं करेंगे, बट सिलेंडर के लिए सिग्मा भी हो सकता है, लैम्बडा भी हो सकता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, ताकि अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिकॉज चार्ज किधर है महक, चार्ज किधर है? चार्ज सिलेंडर पे है कि गॉसियन पे है? चार्ज सिलेंडर पे है कि गॉसियन पे है? चार्ज सिलेंडर में है महक। सिलेंडर का रेडियस क्या है? एक्चुअल सिलेंडर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। समझा तुझे? जहां चार्ज रहेगा वहां कैपिटल आर आना चाहिए। तो जब मैं सिग्मा करूं, लैम्बडा करूं, तो वहां सब कैपिटल आर आना चाहिए। यू गेट इट? या बट हम जब लैम्बडा लेते हैं, so we are not taking the area, we are taking the length, because lambda is linear charge density. हम सिर्फ लेंथ कंसिडर कर रहे थे, इसलिए हमने लेंथ लिया। ओके क्योंकि आप लेंथ यहां ले कि अंदर ले तो एल ही रहेगा ना भाई। टोटल फ्लक्स, राम, टोटल फ्लक्स, पहले भी मैंने टी यूज किया था, टोटल फ्लक्स। या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि पॉइंट आप यहां एल पकड़े या आप अंदर एल पकड़े, एल तो एल ही रहेगा ना भाई, वहां कहां से चेंज आएगा? एल बाहर पकड़ो एल, या अंदर जाके पकड़ो एल, तो एल ही रहेगा। हैव यू कंप्लीटेड दिस स्लाइड? क्या आप स्लाइड को खत्म कर पाए? सो
Is it done, guys? So that's it from me today. So I hope you understood this lecture. It's a very important lecture. I would request you to go through it once again before you come for the next lecture. Okay, so please re-revise it, listen to it again. And if you have any doubts, we will go through it in the 5 minutes of the next lecture and then proceed to the next. Okay. Yes, Khushi Mittal, which one? Previous matlab? Ye wala, last wala? Yeah. Others can leave. I'll just wait for those who want to take down the slide. Thank you. Khushi, is it done? Not this one? This one, beta? ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था सौरभ. सेम ही रहेगा ना ग्राफ जो हमने स्फीयर के टाइम पे किया था. एमसीक्यूज के टाइम पे सेम. थैंक यू एवरीबॉडी. बाय बाय. गुड नाइट.